ready? I'm so ready to do the impossible. We redefine possible. Join us in March in the city of lakes, where Google developer groups are setting up the stage. Oh, are you ready? Oh, I'm so ready to do the impossible. We redefine possible. So grab your family and come with your crew. You'll find something you love and something new. It's gonna be amazing. The speakers are standing. The experience is lit and there's no signs of landing. So are you ready? Say I am ready. Raise your hands and let the fun begin. Yeah. So are you ready? Oh, I'm so ready. We're Google developer groups will build the stage. So are you ready? And come with your crew. You'll find something you'll love and something new. It's gonna be amazing. The speakers are standing. The experience is lit and there's no signs of landing. So grab your family and come with your crew. You'll find something you love and something new. Yeah, it's gonna be amazing. The speakers are standing. You'll find something you love and something new. Yeah, it's gonna be amazing. Say I am ready. Raise your hands and let the fun begin. Yeah. Do you have thoughts about the fact that I wish I could have started this sports a little younger, right? And we also feel like maybe 25 is too late to even start for sports. We have somebody in the room. Her name is Ma'am Indra Bhandari. She's a government lecturer and an international powerlifter who started her sports journey at the age of 36. She has won 4 international gold medals, 28 national medals, 52 state level medals. Alongside her achievements in sports, she is also an exceptional academic holding 6 postgraduate degrees. And she is joining us here today with her daughter Manaswini Sharma, who started her journey with yoga at the age of 2.5 years old. And Manaswini was facilitated by esteemed figures like PM Narendra Modi, Dr. APJ Abdul Kalam and Baba Ramdev. And in her teenage years, she won multiple national level awards. Manaswini is also a constant supporter of GD Jodhpur. She volunteers at a lot of our events. And for the first time, she's here as a speaker. So a very huge round of applause. Welcome on stage. MGGS Koduna गवर्नमेंट स्कूल। मेरी जर्नी सपने से ही स्टार्ट हुई है और सपने में ही मैंने काफ़ी कुछ किया और ऐसा सफ़र किया है जिसमें मुझे मुश्किलें बहुत मिली, लेकिन मुझे उसको नया आयाम दिया और फिर मैं आगे चलती रही। मेरा बर्थ हुआ है डूंगरपुर में और मैं बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड थी। हर बार फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे फर्स्ट आना ही है और हर साल मैं फर्स्ट आती थी। 9th क्लास में 4 सेक्शन टॉप किए, 10th में 2 सेक्शन टॉप किए और फिर मैंने बीएससी बायोस्ट्रीम से पढ़ाई की। फिर बायोस्ट्रीम से पढ़ाई करते करते कुछ समय ऐसा चेंज आया तो मैंने जल्दी शादी कर ली। 19 में डिग्री ले ली थी और 19 ईयर्स में मेरी शादी हो गई। आफ्टर दैट मैंने 21 साल में मेरा बेटा बॉर्न हुआ था, कौशिक आदित्य नाम उसका। एंड मैं फिर 7 साल हाउस वाइफ थी और हाउस वाइफ में मैंने काफ़ी अपनी फैमिलीज में भी योगदान दिया। और फिर मुझे लगा कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको क्या अप्रिशिएट करूँगी और मैं क्या इतनी टैलेंटेड थी जो मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी से मैं अवार्ड है 2 बार। तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ आगे ही करना चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी, वापस बीएड किया, आफ्टर दैट एमएड किया। एमएड इसलिए किया कि यदि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो मैं बीएड कॉलेज में लेक्चरर बन जाऊँगा। सो फिर 1999 में मेरी जॉब लग गई गवर्नमेंट।
तो मैंने कहा चलो जॉब तो लगी गई है तो फिर मैं कुछ आगे कुछ कर पाऊंगी, ये सोच के मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। फिर 2002 में पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, 2000 में एमएससी कंप्यूटर साइंस से हूँ मैं। फिर मेरी जर्नी और आगे चलती रही, मैंने सोचा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए और हमेशा अपने सपने साकार, आप पॉजिटिव रहोगे तो चलते रहेंगे। तो मैं चलती रही और मैंने उसी बीच डफ में भी मैं मेंबर रही, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की मैं मेंबर रही हूँ और वहाँ पे 2006 से 2013 तक मैंने रिसर्च के नए आयाम दिए और रिसर्च गवर्नमेंट की होती है, उसमें काफ़ी वर्क किया मैंने। इसके बावजूद फिर मेरे को लगा कि मैं कुछ और करना चाहती हूँ और मेरे साथ कुछ और हो रहा है। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में बैडमिंटन खेला, तो बैडमिंटन में मेरा सिल्वर मेडल लगा और सिल्वर मेडल लगा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो एक दिन मैं मेरे बेटे को लेके गई तौशिक को कि बास्केटबॉल खेलना सीखना है, कुछ करना है, तो चलो मैं गई लव स्टेडियम में। फिर वहाँ मैंने उसको ट्राई किया, वो खेलने लगा। इसके बाद में मुझे कोच मिले अमृत कल्याणी जी, वेट लिफ्टर पावर लिफ्टिंग के। तो मैंने उनसे बात करी क्या मैं कर सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है और मैं कुछ कर भी पाऊंगी। सर ने कहा अगर आपको है तो आप आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब वो गवर्नमेंट जॉब भी चल रही, बच्चों को भी पढ़ा रही और आफ्टर देन मैंने वापस जिम स्टार्ट कर दिया। डेली 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस मिली, बल्कि 1.5 से 2 घंटे मैंने प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस में भी मुझे बहुत डाइटिंग का ध्यान रखना पड़ता था। मैं नींबू नहीं खा सकती थी क्योंकि डॉप में आ जाता है और मैं रॉयल मेडल जीता। फिर 2011 में महाराष्ट्र नागपुर गई थी, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल नेशनल पे जीता। फिर इसके बाद मुझे लगा नहीं ये कुछ नहीं है। मैं तो काफ़ी, जब मैं 9 साल झाड़ोफुला से अप डाउन करती थी तब मुझे लगा कि मेरी बॉडी में तो कुछ और एक्स्ट्रा है और मैं उसको कर सकती हूँ, तो मैं उसको कंटिन्यूस रखा। और फिर जब मैंने मेडल जीते तो नेशनल पे 28 मेडल, 12 मेडल गोल्ड, 8 मेडल सिल्वर, 8 मेडल ब्रॉन्ज, नेशनल पे टोटल 28 मेडल जीते। फिर मुझे लगा जब इतना कुछ कर सकती हूँ तो मैं इंटरनेशनल क्यों नहीं करूँगी। और चांस मुझे ऐसा मिला कि दिल्ली में ही वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही थी, मैंने उसमें एंट्री की और फिर मैंने फर्स्ट एंट्री की 2014 में और 14 में मैंने गोल्ड मेडल 2 जीते। फिर वापस वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई 2017 में, तो मैंने 2017 में वापस एंट्री ली और फिर वापस मेरे गोल्ड मेडल। तो वो पढ़ाना प्लस मैं झाड़ो लॉकडाउन करना, इसके बाद मैंने इतना कुछ किया। इसी बीच मेरा प्रमोशन हो गया, मैं सेकंड ग्रेड साइंस में बम्बोरा चली गई। फिर बम्बोरा से भी मेडल जीती थी और इसके बाद में वापस मैं लेक्चरर बन के पटना ये लसाड़िया प्रतापगढ़ में चली गई। फिर 1 महीना बाद वापस मेरा हिस्ट्री काउंसिलिंग में नंबर। इतना मतलब मेहनत करने के बाद कभी पीछे नहीं हटी और आज भी मैं भी लेक्चरर में, मेरे को 9 साल कंप्लीट हो गए, ये 10वां साल लग जाएगा। तो मेरा ये है मैसेज। और मेरे बच्चों, हाँ इसके बाद मैंने मेरे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी बेटी को मैंने 2.5 साल की उम्र में योगा सिखाया था और वो VVIP से कहीं मतलब मिस्टर नागेंद्र सिंह जी, मिस्टर मंगापति राजू और मिस्टर APJ अब्दुल कलाम और मिस्टर इन सब से मिली और काफ़ी नाम उसने अचीव किया। मेरे बेटे को भी मैंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में 4th प्लेस लगवाया था और काफ़ी मैंने जहाँ भी मैं गई वहाँ मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरी जर्नी का सफ़र चलता रहा और चल रहा है और मैं आपके समक्ष हूँ अभी और काफ़ी मैंने नाम किए और अभी भी रिजल्ट भी दे रही हूँ हिस्ट्री में और बहुत मैंने इनोवेशंस की है हर जगह। और मैं भी लोकल एग्जाम इंचार्ज हूँ मेरी स्कूल की। That's all. Known about her journey, but as a mother, I'll say she was the best mother I could ever get.
लाइक जब मैं छोटी थी मैं अपनी मम्मी से बहुत कम मिलती थी बिकॉज शी यूज्ड टू लिव मॉर्निंग में वो लीव करती थी एंड वो शाम को घर आते थे एंड इवन दो शी गेव अस वेरी लिटिल टाइम व्हेन आई वाज वेरी यंग but she always made sure that I was always ready for all my quizzes, all my tests, and she always supported me in my sport career as well. Like when I began my yoga and my gymnastics journey, she was always there to cheer me up. And during my journey in my school age, where I began skating and judo, so she was always there in every competition to cheer me up. And some of the things which she didn't tell you about her is that I came from a family which has been empowered by women a lot. Like her grandmother, she was one of the freedom fighters of India, and she was the first woman in our family who went to a different city just to study, just to take, and she was also a teacher, my great grandmother. So I have very big shoes being such a motivation to all of us. And along with that, I meet all of my mom's students, and they're always like, "Ma'am, you were the best teacher we ever had." She always supported every female student she met, that you can achieve everything, and not just female students, all the male students as well. And I believe that age doesn't define you, because she began her sports career at the age of 36. Like you guys, like I'm in my 22 right. I'm 22 right now, and I feel like, oh my God, how much time has passed. No, I sometimes feel that imposter syndrome to start anything new. But she accomplished all that fear, and she started her sports journey. So if she can do it, you can do that as well. So thank you. I invite Ma'am Indra Bhandari and Manaswini to please collect a token of appreciation. Was the story amazing? Did you learn